हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Reason for coming to the India. Reason for coming to India. Let us study on this topic. The European and British trader initially come to the India for a trading purpose. That is the most important point here. European and British traders only purpose here for coming to the India their trading purpose. But the industrial revolution in Britain led to increase in a demand for the raw material for the factories and there. At the same time, they also require a market to sell their finishing goods. You know that there is the most important for the same time they are also required to the market to sell their finished good. But Indian market is the most important in this period time. India is provide such a platform to British to fulfill all their needs. There is raw materials and the marketing of sale of finishing of goods. There is India is a fulfill all their need. The 18th century was a period of internal power struggle in the India. There is a 18th century. In this period of time, the internal power struggle in India and with the decline of power of Mughal Empire. The decline of in this period of time Mughal Empire. The British officer where is provided with the perfect opportunity to establish their hold over India territory. And they did this is a third a numerous war and force of threats and annexation on the alliance with the various regional powers all over the country. There is a regional power all over the country on this period time. The new administrative and economic policy helped them to the consolidate their control over the country. Their land revenue policy helped them keep the poor farmer in check and get some as a revenue in the return. Therefore, there is a commercialization of agriculture with the growing of various cash crop and the raw materials for the industry in a Britain. With the strong political control, the British were able to non-polize their trade with India, and they defeated their foreign tribes in a trade so that there could be no competition. These monopolized their sale of all kind of raw materials and bought this at a low price. There is the most important benefit on India given to the British, the raw material and bought this at a low price. And whereas India, weavers had to buy them at a exorbitant price. Heavier duties were imposed on Indian goods entered to British so as to be protect their own industry, and various investments were made to improve the transport and communication system in the country of facilitated the easily transfer of raw material from the farm to port and of finished good from their port to the markets. And also English education was introduced to be create a class of educated Indian who would be assist the British in ruling the country and strengthen their political authority. All these measures helped to the British to establish and consolidate and continue their rule over India. And in this period time here, the currency used the East India Company show you on your screen. There is a most important currency on this period time. And also use the other currency used by the East India Company on this period time. There is the paper money. There is the most important for your screen. There is a imagine the East India Company is also written on this. This is a currency, and also here the any of ones is used. This is important. एक ऐसा समय दौर था जहां पर भारतवासियों को जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया था और करीबन 250 साल थी जिसमें गुलाम भारत बना था। आखिर उनके गुलामी के कारण क्या था?
क्या भारत स्वयं ही ब्रिटिश के अंडर चले गए थे? क्या उस समय राजनीतिक ऐसी हालात थी जो ब्रिटिश अपने आप को स्टेबलिश कर पाए इंडिया में? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी प्रश्न के जवाब जो हम इस चैप्टर में ढूंढने वाले हैं कि भारत पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव, उसमें हम आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये समय काल जो रहेगा 1757 से लेकर 1857, यानी करीबन 100 साल के अंतराल में जो भारत में ब्रिटिश जो है अपनी घर बनाई, उसके विषय में हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे और हर एक पहलू पर जो है प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। और आपको इसके लिए बने रहना पड़ेगा त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा कि समय समय पर इसके वीडियो आएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट आया है ब्रिटिश के भारत आने के कारण। आखिर भारत में ब्रिटिश क्यों आए, किस कारण से आए? अगर वो व्यापार करने के मकसद से ही आए थे तो उनका जो है यहाँ पर शासन कैसे स्थापित हो गया? क्या उस समय राजाओं में ताकत नहीं थी जो ब्रिटिश के नीतियों को सफल कर सके? क्या भारत में कुछ ऐसी चल रही थी समस्या जिसको ब्रिटिश को जो है स्टेबलिश होने में पूरा जो है माहौल तैयार करके दिया? तो ये बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट उठता है और यही प्रश्न जो है एग्जामिनर भी एग्जाम में पूछता है। तो इसी पे हम अभी विचार करने जा रहे हैं और एक पहलू पर जो है प्रकाश डालेंगे। देखा जाए तो ब्रिटिश भारत आने का कारण, आखिर ब्रिटिश भारत पे क्यों आए? तो देखा जाए यूरोप तथा ब्रिटिश भारत में व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए थे। यानी यूरोप और ब्रिटिश का सिर्फ एक ही मकसद था उस समय कि वो भारत में व्यापार करें। लेकिन ब्रिटिश में हुई औद्योगिक क्रांति ने वहाँ के कारखानों के लिए कच्चे माल की मांग बढ़ा दी। अब देखिए, ब्रिटिश में जो औद्योगिक क्रांति हुई, क्रांति होना अच्छी बात है, लेकिन ये औद्योगिक क्रांति हुई यानी सामानों को बहुत आसानी से बनाना सीख लिए थे, जो हम पिछले चैप्टर में किए भी थे। तो यही बात यहाँ बताता है कि औद्योगिक क्रांति ने वहाँ कारखानों के कच्चे माल की मांग बढ़ा दी। अब देखिए, वहाँ पर कच्चे माल की बहुत कमी थी और उनको एक ऐसा उपनिवेश चाहिए था जहाँ पर वो कच्चे माल खरीद सके। अब खरीद लिया कच्चे माल, उनकी प्रोडक्ट बना लिया, तो उनको कहीं ना कहीं खपाना भी तो था, तभी तो उनको करेंसी मजबूत होगी। यही उद्देश्य से उन्होंने भारत की तरफ रुख किया। साथ साथ वो अपना तैयार माल भी भारतीय बाजार में बेचना चाहते थे, क्योंकि भारत में ऐसा क्षेत्र था, जगह था जहां पर उनकी कंपनियां जो है चरम सीमा तक पहुंच सकती थी। भारत ने ब्रिटेन की सभी ज़रूरतें पूरा करने के लिए उसे एक ऐसा ही आधार उपलब्ध करवाया, यानी भारत में वो हर एक कंडीशन उपलब्ध था जो उनके लिए महत्वपूर्ण थी। चाहे कच्चे माल की बात हो, चाहे जो है सामानों को यहाँ बेचने की बात हो, दोनों कंडीशन में जो है ब्रिटिश के लिए जो है यहाँ पर पूरा माहौल तैयार करके दिया गया। 18वीं सदी में भारत में आंतरिक सत्ता के लिए संघर्ष की स्थिति थी। आपको पता है भारत में ये सदैव ही चलती आ रही है और मुझे भी नहीं लग रहा कि कभी फ्यूचर में भी ख़त्म होने वाला है, कि सत्ता के लिए संघर्ष सदैव चलती ही रहती है। कहते हर कोई जो है सत्ता पाने की लालसा में अपने ही देश से गद्दारी करने पे लगा हुआ था। मुगल साम्राज्य की शक्ति भी उस समय बहुत कम हो गया था, क्योंकि औरंगजेब जो था उस समय बहुत ही जो है कमज़ोर शासक के रूप में उभर रहा था। कहते हैं ऐसे तो औरंगजेब काफ़ी पावरफुल था और अच्छा खासा चलाया, लेकिन औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं आया जो ब्रिटिश से संघर्ष कर सके। अंततः ब्रिटिश अधिकारियों के पास भारतीय क्षेत्र पर अपनी पकड़ स्थापित करने का अवसर था। अब देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात रखता है अभी भी और आने वाला समय में भी, कि जब हम अपने ही घर में आपस में लड़ते रहेंगे तो दूसरा व्यक्ति जो है फ़ायदा उठा लेगा। आपने बंदर और बिल्ली वाली स्टोरी तो सुनी ही होगी। कहते हैं जब दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे होते हैं तो तीसरा 100% है जो वो फ़ायदा उठा लेगा। कहते हैं भारत में सत्ता के लिए आपसी संघर्ष सदैव चलती रही है और इसका फ़ायदा जो है दूसरे देश उठा लेते हैं। और ये तो चलिए पुराने समय की बात थी। इवन आज देखा जाए तो आज की राजनीतिक में भी ऐसा ही देखने को हमें मिलता है। कहते हैं यहाँ पार्टी कई हैं और सभी पार्टी का मकसद जो होता है अपना जो है राज्य स्थापित करना, अपना पार्टी को जिताना, और इस जिताने के मकसद से वो
वो सारे कार्य कर जाते हैं जो देश भलाई के लिए नहीं होता है। और इवन आजकल आप न्यूज़ में भी ऐसे ही बात सुनते होंगे, आपको गुस्सा भी आता है लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आपको पता है आप क्या बोल सकते हो। आजकल सच बोलने वाले को तो सदैव जो है जेल का रास्ता दिखाया जाता है। तो कहते हैं गलत है। कहते हैं आप, राजनीतिक वो चीज़ है जहाँ पर देश के लिए राजनीति की जाती है, अपने मकसद के लिए नहीं की जाती है। अगर आप अच्छा कार्य करोगे तो 100% जो है अगली सरकार आपकी ही होगी। जब अच्छा कार्य ही नहीं करोगे तो कौन आपको जिताएगा, क्योंकि भारत एक, आपको पता है, लोकतांत्रिक देश है और लोग उसी को ही चुनते हैं जो अच्छा कार्य करने में अग्रसर होता है। जो सत्ता करते हैं उनको कभी भी जो है इंडिया के लोग कभी भी सत्ता में रहने नहीं देते हैं। ये बहुत बड़ी प्रावधान बन गई है आज के समय। तो ये अच्छी बात है और नागरिक को भी इस बात को जागना चाहिए। हर एक नागरिक को इस बात को समझ होनी चाहिए कि वो लालचों में ना आए। लालच का करने से हमारे देश के संसाधन का दोहन होता है। चाहे अगर आप पानी फ्री कर रहे हो, बिजली कर रहे हो, रेल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, कहते हैं इससे हमारी संस्कृति, हमारे जो विरासत है उसका दोहन होता है और ये आम बंदे नहीं समझ सकती हैं। तो इसलिए बड़े बड़े नेताओं के जो है आड़ में मत आइए, फ्री के लालचों से दूर रहिए। और देखिए यही बात अंग्रेज भी उस समय ब्रिटिश जो है भारतीय राजाओं को जो है लुभाने के लिए कार्य करता था। वो तरह तरह की चीज़ें वहाँ से लाता था, फ्री में देता था राजाओं को, और राजा जो थे ललायत हो जाते थे और ब्रिटिश की हर बात मानने को तैयार हो जाते थे। जैसे आप भी कभी पानी, कभी बिजली, तो कभी बस के चक्कर में आके आप भी क्या करते हो, मंत्रियों को जिता देते हो और उसके बाद वो आपके दोहन करने लग जाती हैं और वो प्रचार सिर्फ टीवी में करते रहते हैं कि भाई करप्शन है, आप वीडियो बनाओ, ये करो। अरे भाई, आप तो समझदार बना दिए लोगों को, आपने उन जो कहते हैं पैसा देने वालों को भी समझदार बना दिया और पैसे लेने वालों को भी समझदार बना दिया। तो आपको क्या लगता है कि सभी काम क्या वहाँ पर मोबाइल के सामने होगा या कंप्यूटर के सामने होगा या कोई कैमरे के सामने वो लोग पैसे लेंगे? आपने तो उनका रास्ता और भी आसान कर दिया। तो यही बात उस समय में भी हुआ। ब्रिटिश भारत में लालचों की उन्होंने बरसात कर दी। कहते हैं जिनकी लालसा थी राजशाही प्राप्त करने की, उनको उन्होंने राजशाही देने की वादा कर डाला। और जो राजा जो है सिंपल अपना जीवन जीते थे, उनको जो है अच्छे कपड़े देना, उनको तरह तरह के गिफ्ट देना, और देने से क्या हुआ, वो लोग काफ़ी ललायत हो गए और ब्रिटिश में जो है उपनिवेश स्थापित करने का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। और ऐसा ही हुआ उस समय। उन्होंने कई युद्धों के माध्यम से थोपी हुई संधियों से भी वो आगे बढ़े। कहते अगर देखा जाए तो ब्रिटिश अधिकारियों के पास भारतीय क्षेत्र में अपनी पकड़ स्थापित करने का पूरा अवसर जो है यहाँ के लोगों ने दे दिया और उन्होंने कई युद्ध के माध्यम से थोपी हुई संधियों से, अनुबंधों से और पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों के साथ गठजोड़ भी किया। यानी जो राजाओं के दुश्मन होते थे उनके साथ वो मिल जाते थे और उनको ये वादा करते थे कि इस राज्य को हड़पने के बाद हम राजशाही आपके अधीन कर देंगे, और ऐसा ही करते थे। इस वजह से कई क्षेत्रीय राजाओं जो है वहाँ के जो उनके दुश्मन थे वह अंग्रेज़ों से हाथ मिला बैठे। अपनी नई प्रशासनिक और आर्थिक नीतियों की मदद से कहते हैं संपूर्ण देश पर अपना नियंत्रण दृढ़ बना लिया और इस तरह भारत जो है गुलामी की जंजीरों में कस गया। और कहते हैं ये आम व्यक्ति का ही सोच थी जिसकी वजह से भारत जो है गुलामी की जंजीरों में जकड़ा, क्योंकि उनके राजा ही ऐसे थे। तभी कहा जाता है कि जो राजनीतिक क्षेत्र में बैठे हुए हैं उनको कभी निजी नहीं सोचना चाहिए। अगर वो अच्छे कार्य कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक जो है लोग भी उनको सराहना करेंगे। अगर वो गलत कार्य कर रहे हैं तो लोग उनको कभी भी सराहना नहीं करेंगे, उनको जो है गलत ही सिद्ध करेंगे। और ये इलेक्शन में भी देखने को आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, आज हमें फिर से जो है गुलामी की जंजीरों में नहीं जकड़ना है, हम आज़ाद रहना चाहते हैं। इसलिए आप लोग कभी भी वोटिंग करो, कभी भी सोचो, कभी विचार करो तो लालच के बेस पे जो है आवेश में आके ना करो, क्योंकि लालच सदैव खतरनाक होती है। लालच करनी बुरी वाला है। ये बचपन से आप बच्चों की स्टोरी सिखा रहे हो और स्वयं ही इस रास्ते पे चल नहीं रहे हो। ये तो बहुत बड़ी बात आ जाती है कि जो शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं और उसी शिक्षा हम न लेके हम लालचों को जो है पिटारे में फंसते जा रहे हैं, और इसका परिणाम आने वाला समय में बहुत ही दुष्कर्म होगा। क्योंकि कोई चीज़ फ्री होती है तो आगे चल के वो चीज़ें आप पे ही पड़ती है। उसका जितने भी अमाउंट होते हैं, पैसे लगते हैं, वो कोई ना कोई रूप में आप पे ही पड़ता है।
तो इससे अच्छा है कि उस चीज़ की हम पैसे चुका के ही अपने आप को जो है निश्चिंत का सांस लें। तो ये महत्वपूर्ण बात यहाँ आती है, और वही बात जो है उस समय के राजाओं ने ये बात नहीं सोची, और अपनी प्रशासनिक और आर्थिक नीति की मदद से संपूर्ण देश पर जो है उन्होंने जो है ब्रिटिशों ने अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल हो गए। उनकी भू राजस्व नीतियों के किसानों और उनसे राजस्व में बड़ी रकम प्राप्त की। अब अंग्रेजों के जो है अपने आड़ में ले लिया राजाओं को, तो उन्होंने जो है राजाओं ने क्या किया, भू राजस्व इकट्ठा करने के लिए अंग्रेजों को ही निमंत्रण दिया, अंग्रेजों को ही ठेका दे दिया, और उन्होंने जो है किसानों के साथ बहुत ही दुराचारी का जो है सबब अपनाया। उन्होंने अधिक से अधिक रकम उनसे प्राप्त करने की होड़ में लग गई। उन्होंने कृषि के विभिन्न फसलों को जो है व्यवसायीकरण पर बल दे दिया और ब्रिटिश के उद्योग के लिए कच्चा माल की आपूर्ति सुनिश्चित किया। और ये सुनिश्चित के अंतर्गत आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं कि जो नील की खेती के लिए जो चंपारण में घटना घटी थी वो इन्हीं में से एक था। कहते हैं मजबूत राजनीतिक नियंत्रण के साथ ब्रिटिश भारत में व्यापार पर एकाधिकार करने में सक्षम हो गए, क्योंकि उन्होंने पहले ही राजाओं को जो है अपने नियंत्रण में कर लिया। यानी मजबूत राजनीतिक नियंत्रण के साथ ब्रिटिश भारत में व्यापार का एकाधिकार करने में सक्षम हो गए, क्योंकि राजा उनके साथ थे, राजा उनके हाथ में थे, जैसे मर्जी जो है यहाँ के नागरिकों के साथ वो कर सकते थे। उन्होंने अपने विदेशी प्रतिद्वंदियों के व्यापार में हरा दिया और उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहा। तो ये भी उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। उन्होंने सभी प्रकार के कच्चा माल की बिक्री पर एकाधिकार कर लिया, क्योंकि पहले देखिए ब्रिटिश जो आए थे सिर्फ अपना व्यापार के सोच विचार लेके आए थे, लेकिन जब उन्होंने हर क्षेत्र पे कब्जा कर लिया तो उन्होंने सभी प्रकार के कच्चा मालों पर बिक्री पर एकाधिकार उनका हो गया। उसे कम कीमत पर खरीद, जबकि भारतीय बुनकर इसे अधिक मूल्य पर खरीदते थे। अब देखिए जो बुनकर होते थे उनके सामान ही अधिक कीमत पे खरीदते थे, और भारत में जो कच्चे पदार्थ होते थे उनको बहुत ही लो प्राइस में खरीदी जाती थी। अपने स्वयं के उद्योग की रक्षा के लिए ब्रिटेन ने भारतीय माल पर भारी आयात कर लगाया। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि अपने ही देश में अपने ही राजाओं के हाथे न बंदी बन के ब्रिटिश के हाथों जो है यहाँ का उद्योग बन गया। तो यही बात यहाँ संकेत देता है। आज भी जो हमारे देश में बहुत से लोगों का विचार ये है कि विदेशी कंपनियाँ भारत में आएगी तो यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, लेकिन एक बात उनको समझ नहीं आ रहा है इतिहास से कि जैसे हमारे पुराने समय में हुआ कि यहाँ पर तो व्यापार करने आते हैं, लेकिन यहाँ की जो कंडीशन राजनीतिक होती है लड़ाई झगड़े की होती है, और लड़ाई झगड़े में दूसरा बंदा फ़ायदा उठा जाएगा, ये हमेशा होता ही रहेगा। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अगर हमारे देश में जब तक राजनीतिक जो है एकता मजबूत नहीं होगी, हर पार्टियों को अपना अपना कार्य भली भांति करने की आवश्यकता है, राजनीतिक करने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं जो अच्छा कार्य करेगा अपने क्षेत्र में वो सदैव ही विजय रहेगा। ये तो भारत में हर एक व्यक्ति जानता है, लेकिन गलत रास्तों से किया गया कार्य कभी भी जो है देश कल्याण के लिए और सुखद नहीं होती है। देश में परिवहन का संचार प्रणाली को सुधारने के लिए विभिन्न निर्देश भी दिए गए, ताकि खेतों से बंदरगाहों तक कच्चा माल और बंदरगाहों से बाजारों तक तैयार माल की आवाजाही आसान हो सके। अब देखिए भारत में पूरा जो है अंग्रेज़ों का पैर पसर चुका था, तो उनको व्यापार के लिए भी सरल बनाना था, और सरल बनाने के लिए उन्होंने जो है परिवहन और संचार प्रणाली की बहुत ही सुधार किया। उन्होंने हर एक चीज़ अपनाया जिससे बंदरगाहों तक कच्चे माल और बंदरगाह से कच्चे माल बाज़ारों तक आसानी से पहुंच जाए, इनके उन्होंने प्रावधान किया। साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा का भी शुरुआत की, क्योंकि यहाँ पर उनके भाषा को समझने वाले कोई भी भारतीय नहीं थे, इसलिए उन्होंने जो है अंग्रेजी शिक्षा का भी शुभ आरंभ किया, जो शिक्षित भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार करे जो अंग्रेजों के देश प्रशासन करने और अपनी राजनीतिक सत्ता दृढ़ करने में मदद करे। तो जर्नल सी बात है, ये शिक्षा का माध्यम भी उन्होंने ही दिया। अगर वो शिक्षा नहीं देते भारतीय लोगों में तो शायद उनकी भाषा, उनकी विचारधारा वो नहीं समझ पाती, और इसके लिए उन्होंने जो है भारत में जो है अंग्रेजी को अनिवार्य बना दिया और दृढ़ करने में हर संभव कोशिश किया। इन सभी उपयोगों ने अंग्रेजों को भारत में अपना जो है शासन स्थापित करने और इसे दृढ़ करने जारी रखने में मदद की। तो यही वो कारण थी जिसके वजह से भारत जो है 100 साल की दास्तान जो यहाँ पर हमारे टॉपिक के अंतर्गत आया है, उसी की हम बात कर रहे हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है।
देखिए यहाँ पर आपको दो चित्र दिख रहे होंगे, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1808 की ये करेंसी है जो ब्रिटिश कंपनियों ने भारत में जो चलाया था। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, एक्स कैश। तो ये करेंसी है जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में उस समय चलाई थी, और ये अर्थव्यवस्था पर सबसे पहला अधिकार करने का उनका एक मकसद था। और भी करेंसी थी जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अब देख सकते हो कि यहाँ पर जो है पेपर करेंसी है और इस पर भी लिखा हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस तरह जो है वो भारत में अपना दबदबा बनाने में हर संभव कोशिश किया, क्योंकि उन्होंने जो है व्यापार के साथ उन्होंने इकोनॉमिकल अर्थव्यवस्था पे भी अपना कब्जा कर लिया, इवन कि राज्य शासन पे भी कब्जा कर लिया, और पूरे भारत पे उनका जो है दबदबा बन गया। तो जनरल सी बात है, उन्होंने करेंसी पे भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो इस तरह जो है भारत में अंग्रेज़ों ने अपना जो है पैर को जो है पसारा और भारत को जो है 250 सालों की गुलामी दी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था। हमने हर बात के बारे में जाना और समझा कि इतिहास से भी हम कुछ ज्ञान हासिल कर सकते हैं, और वो गलती ना करें जो पुराने समय में राजा महाराजाओं ने किया। अगर वही गलती आज दोहराई जाती है तो 100% है कि आने वाला समय में भारत फिर से जो है गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। ये हमारे लिए भी सही नहीं है और पूरे देश के लिए सही नहीं है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। हमने हर एक बात पे जो है आपको समझाने की कोशिश किया। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया, अच्छा लगा, अच्छी सोच लगी, तो जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चे तक पहुँचाने में आप तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प कर सकती हो। अगर आप हेल्प करने का मतलब तो वो बनाते हो तो जर्नल सी बात है, कुछ अच्छी ही बात होगी, इसलिए कुछ सोचना नहीं है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। जिन बच्चे के कांटेक्ट में आप होगे उनको ये वीडियो मिलेगी, देखेंगे, समझेंगे। नहीं अच्छा लगे इग्नोर कर देंगे, क्योंकि कहते हैं जो चीज़ सही होता है वो सही होता है, वो गलत कभी बन नहीं सकती। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लीजिए, कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। और आपको पता है तिरपान सेंटर जो है 8th से लेके MA तक के बच्चों के लिए अग्रसर है, तो यहाँ पर हर तरह के वीडियो जो है आपको समय समय पर मिलता रहेगा। और कौन सा टॉपिक कब आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाए ये शायद आपको भी पता ना हो, इसलिए सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है। जो सब्सक्राइब का रेड बटन दिख रहा है उसको दबाइए और अपने मोबाइल पर इसको सेव कीजिए। ठीक है, कुछ विचार रखना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, कुछ बदलाव चाहते हो, या कुछ शिकायत है तो आप इसके लिए प्रावधान किया गया है, आप कमेंट कर सकते हो।